Today we are going to start with the concept of probability. काफी easy concept है for your level and the levels beyond. So we will be looking at it from a very objective point of view and we will be trying to understand it. इसका concept थोड़ा math से थोड़ा different है. Obviously maths है, but जो traditional maths हम लोग किए हैं उससे थोड़ा different है. So probability is nothing but a ratio. So whatever you are seeing, in fact, you are seeing a ratio on your screen right now. You're seeing that some part of the bottle is above the level of the water and a part of the bottle is below. So it's always a ratio. So what is probability? Probability is the chance of something happening. Chance of something happening. So what are the favorable chances of something happening? So probability of something happening is total number of favorable options by total number of options. ना कोई भी चीज होने के लिए ऑप्शंस हो सकता है बट फेवरेबल ऑप्शन होना जरूरी नहीं है कि ऑल दी ऑप्शंस विल बी फेवरेबल ऑप्शंस. ठीक है, कोई भी चीज का अकर होना जरूरी नहीं है कि हर कोई ऑप्शन फेवरेबल होगा. कुछ ऑप्शंस अनफेवरेबल भी होते हैं. फॉर एग्जाम्पल, लेट अस से Donald plays golf and every fourth time he tries to hit the ball with the club, he fails. ठीक है, Donald is now going to hit the ball. What is the probability that the ball will be hit? बात को अच्छे से समझेंगे. So on an average, he tried to hit the ball, he did. He tried to hit the ball, he did. He tried to hit the ball, he did. He tried to hit the ball, he did not. On an average, every fourth time he tried, he did hit the ball. So जितना total time वो hit करता था, चार में से एक बार वो hit नहीं करता है. ठीक है. So out of 4 hits, 3 are successful and 1 is not. So probability to hit the ball is, what are the favorable options? 3. 4 में से 3 बार वो hit कर रहा है. So what is the favorable option? 3. And what are the total number of options? 4. So what is the probability that Donald is going to hit the ball? 3/4. What is the probability that Donald is going to hit the ball? 3/4. Do you understand this? Let's see. Hassan is playing pool. Hassan tries to hit the white ball with the cue, but he is successful only 1 in 7 tries.
What is the probability? What is the probability that Hassan will miss the ball and Luke? Okay. So there are 7 times that Hassan is going to hit the ball. Try to hit the ball. Unsuccessful, 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 maybe successful, unsuccessful, unsuccessful, unsuccessful. So out of 7 tries, he is able to hit the ball once. So what is the probability he is going to miss the ball? So यहाँ favorable option क्या है मेरे लिए? मिस करना मेरे लिए फेवरेबल ऑप्शन है, हिट करना फेवरेबल नहीं है. हमको क्या बोल रहा है? मिस कितने बार, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इज गोइंग टू मिस द बॉल. सो हमको फेवरेबल यहां क्या चीज है? मिस के हिसाब से देखना है कि बॉल कितने बार मिस होना है. सो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी that the Q is going to miss the ball 6 times and out of a total of 7 times. So that's the probability that Hassan is going to miss the ball. Let us see what is the probability when we flip a coin. Now, a coin has 2 sides. A coin has 2 sides. So, on flipping a coin, we either get a heads or a tails. या तो हमको हेड मिलेगा या टेल मिलेगा. तो ऑप्शन टोटल में कितना है? टोटल में ऑप्शंस कितना है? 2. So someone asks me, what is the probability of getting a head? What is the probability of getting a head? So if I look at my options, head का probability या head का favorable option एक ही है. There's only one option that is favorable when I am trying to look for head. Head एक ही बार आ सकता है. So what is the probability? 1 out of 2. कोई बोलेगा what is the probability that I am going to get a tail? How many times in the 2 times where am I going to get a tail? Only 1 time. दो में से एक बार में ही tail आ सकता है, दोनों बार तो tail नहीं आएगा. So what is the probability of getting a tail? 1 out of 2 options. 1 out of 2 options. So what is the probability of getting a tail? 1 out of 2. What is the probability of getting a head? 1 out of 2. क्योंकि 2 ऑप्शन है मेरे पास एक कॉइन फ्लिप करने में. कभी भी हम लोग कॉइन को फ्लिप करेंगे या तो हेड्स है या टेल्स है, या तो हेड्स है या टेल्स है. सो अगर हम यहां 2 कॉइन को फ्लिप करते हैं, इफ आई एम गोइंग टू फ्लिप 2 कॉइन्स, कॉइन 1 में एंड कॉइन 2 में क्या क्या ऑप्शन आ सकता है? अगर कॉइन 1 में हेड आता है तो कॉइन 2 में भी हेड आ सकता है. अगर कॉइन 1 में हेड आ सकता है तो कॉइन 2 में टेल आ सकता है. अगर कॉइन 1 में टेल है तो कॉइन 2 में हेड आ सकता है. कॉइन 1 में अगर टेल है तो कॉइन 2 में भी टेल हो सकता है. सो वी हैव 4 options when we are flipping 2 coins. We have 4 options when we are flipping 2 coins. ठीक है. सो अगर हम लोग 2 coins को फ्लिप करते हैं, 2 coins are being flipped, what is the probability that both are heads? देखिए हम आपको ऑप्शंस दिखाए, आपके पास 4 ऑप्शन है यहां. 1 2 3 4. कितना ऑप्शन है आपके पास? 4 ऑप्शन है. 4 में से एक ऑप्शन ऐसा है, 4 में से एक ऑप्शन ऐसा है जिसमें दोनों कॉइन में हेड आता है. हो ही सकता है ना कि हम कॉइन को, एक कॉइन और 2 कॉइन को फ्लिप किया, दोनों हेड आ गया. 2 कॉइन को फ्लिप किया, पहला वाला में टेल आया, दूसरा वाला में हेड आ गया. 2 कॉइन को फ्लिप किया, पहला वाला में हेड आया, दूसरा में टेल आ गया. हो ही सकता है ऐसा, हो ही सकता है ऐसा. सो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ आर हेड्स? दोनों में हेड है.
दोनों कॉइन को फ्लिप करने में एक ही ऑप्शन ऐसा हो सकता है, एक ही बार हो सकता है, चार ऑप्शन में से एक ही ऑप्शन ऐसा है कि वो हेड है। देखिए बात को समझिएगा, इफ बोथ कॉइन्स आर फ्लिप्ड 10 टाइम्स, अगर हम दोनों कॉइन को 10 बार फ्लिप करते हैं, बात को समझेंगे, दोनों कॉइन को हम लोग कितने बार फ्लिप कर रहे हैं? 10 बार। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपको 10 डिफरेंट कॉम्बिनेशंस मिलेगा, 10 अलग तरह का कॉम्बिनेशन आपको नहीं मिलने वाला है। जो भी आएगा इन चार कॉम्बिनेशन में से ही आएगा। ठीक है, सो हमेशा याद रखिएगा, व्हाट आर योर ऑप्शंस? यूनिक ऑप्शंस को हम लोग देखते हैं, हम लोग रेपिटेटिव ऑप्शंस को नहीं देखते हैं। ठीक है, आप ट्राई कर सकते हैं, हेड हेड, हेड टेल्स, टेल्स हेड, टेल्स टेल्स। चलिए, हेड, उसके बाद क्या लिखेंगे? या तो टेल लिख सकते हैं या हेड लिख सकते हैं, राइट? अगर पहला वाला में हेड है, दूसरा वाला में या तो टेल या हेड हो सकता है। टेल ले लीजिए, मैच कर रहा ना इससे। चलिए, पहला वाला में हेड नहीं आया, पहला वाला में टेल आया, दूसरा वाला में क्या आ सकता है? या तो हेड या टेल, ये भी तो मैच कर रहा है। सो हम लोग के पास चार ही यूनिक ऑप्शन है, और उसमें से एक यूनिक ऑप्शन ऐसा है, एक यूनिक कॉम्बिनेशन ऐसा है जिसमें दोनों हेड है। ठीक है, सो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ आर हेड्स? 1 out of 4 unique options. Only one option out of 4 unique options are heads. Do we understand? चलिए फिर से कॉइन फ्लिप करते हैं। ना इमेजिन कीजिए, फिर से आपके पास अब 3 कॉइन है। 3 कॉइन का कॉम्बिनेशन कैसा होता है? ना ये कैसे आ रहा है ये आपको जानना जरूरी नहीं भी है, बट देखिए यूनिक ऑप्शन ही आएगा। लिखते कैसे है देख लीजिए, बहुत कम चांसेस है 3 कॉइन आए, 2 कॉइन तो डेफिनेटली आएगा। एक कॉइन है तो 2 ऑप्शन, 2 कॉइन है तो 4 ऑप्शन, 3 कॉइन है तो 8 ऑप्शंस। ठीक है, वेर 2 इज द नंबर ऑफ ऑप्शंस ऑन फ्लिपिंग अ कॉइन। एक कॉइन में कितना ऑप्शंस है? मैक्सिमम 2 ही है, तो 2 में 2 स्क्वायर होगा, 3 में 2 क्यूब होगा, तो 3 कॉइन में आपका 8 ऑप्शन होता है। यूनिक ऑप्शंस का बात कर रहे हैं। सो ऑन फ्लिपिंग 3 कॉइन्स, on flipping 3 coins, what is the probability we get at what is the probability that we get at least 2 tails? एट लीस्ट का मतलब है 2 से नीचे नहीं होना चाहिए, 2 से ज्यादा भी हो सकता है। सो यहां नहीं, यहां तो एक ही टेल है नहीं, यहां भी एक टेल है नहीं, यहां एटलीस्ट 2 है, सही है, यहां एटलीस्ट 2 है, नहीं है, यहां एटलीस्ट 2 है, यस, यहां एटलीस्ट 2 है, यस, यहां एटलीस्ट 2 है, यस। सो 8 में से 4 ऑप्शन ऐसा है जिसमें हमको एटलीस्ट 2 टेल मिलता है। So what is my probability? 1 out of 2. What is my probability? 1 out of 2. So if we flip 2 coins, how many options we have? 4 options. ठीक है, ऑप्शंस कैसे आ रहा है देखें, हेड टेल, हेड टेल, हेड हेड, टेल टेल। ठीक है, so if I give you a question on flipping,
3 coins, what is the probability of getting at most 2 heads? बात को समझेंगे अच्छे से. So when we flip a coin, and when we are flipping 3 coins, we have a total of 8 unique combinations. यानी हेड एंड टेल मिला के 8 यूनिक कॉम्बिनेशन मिलता है तीनों कॉइन को मिला के. करेक्ट. नाउ व्हेन वी आर फ्लिपिंग दीज 3 कॉइन्स, वी हैव अ टोटल ऑफ 8 ऑप्शंस. सो एट मोस्ट 2 हेड का मतलब क्या है? 3 नहीं चलेगा, हटा दीजिए. सही है, सही है, सही है, सही है, सही है, सही है. नो हेड्स भी सही है. एट मोस्ट 2 हेड्स. नो हेड भी रहा तो चलेगा ना. एट मोस्ट बोल रहा कि 2 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, उससे कम होगा चलेगा. सो ये ऑप्शन छोड़ के सभी ऑप्शन में 3 से कम है. ठीक है. सो 7 आउट ऑफ 8 times we get at most 2 heads. So what is the probability of getting at most 2 heads? 7 out of 8. So ये आपको probability में करना पड़ता है, ये समझना पड़ता है कि what are my favorable options, कि कौन सा ऑप्शन मेरे लिए सही है, कौन सा ऑप्शन मेरे लिए गलत है. ठीक है. So let's come to the next option, dice. एक डाइस में 6 साइड्स होता है, तो मतलब एक डाइस में 6 ऑप्शंस भी होता है. एक डाइस में 6 साइड्स होता है तो मतलब 6 ऑप्शंस भी होता है. 1 2 3 4 5 6. So on throwing a dice, what is the probability that the number is 4? 6 ऑप्शन में से कितना ऑप्शन 4 है? एक ही ऑप्शन 4 है. सो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा? 1 आउट ऑफ 6. What is the probability that the number is an odd prime number? कितना प्राइम नंबर है मेरे पास यहाँ? 2 3 एंड 5. बट ऑड कौन कौन सा है? 3 एंड 5. सो आउट ऑफ 6 ऑप्शंस, 2 ऑप्शंस आर ऑड प्राइम नंबर्स. सो प्रोबेबिलिटी क्या है? 1 आउट ऑफ 3. प्रोबेबिलिटी क्या होगा? 1 आउट ऑफ 3 होगा. आर वी क्लियर? What is the probability that the number is greater than 2? 2 से ग्रेटर कौन कौन सा नंबर है? 3 4 5 एंड 6. यानी 4 नंबर ऐसा है जो 2 से बड़ा है. आउट ऑफ 6 ऑप्शंस, 4 ऑप्शंस आर ग्रेटर देन 2. सो माय प्रोबेबिलिटी इज 4/6. प्रोबेबिलिटी क्या है उसका? 4/6 है. डू वी अंडरस्टैंड दैट? डाउट है? प्लीज रेज योर. चलिए. What if 2 dice are thrown? अगर 2 डाइस थ्रो किया जाएगा तो 2 ऑप्शन आएगा, एक पहला डाइस का और एक दूसरा डाइस का. 2 नंबर आएगा. करेक्ट. सो पहला डाइस में क्या क्या ऑप्शन हो सकता है? 1 2 3 4 5 एंड 6. एंड दूसरे डाइस में क्या क्या हो सकता है? 1 2 3 4 5 एंड 6. बट एक डाइस में एक बार में एक ही नंबर आ सकता है. सो अगर पहला नंबर, पहला डाइस में 2 आता है तो दूसरा में कोई एक इसमें से भी आ सकता है. लेट से 4 आ गया तो 2,4 आपका एक ऑप्शन हो गया. हो सकता है कि आपका पहला में इन 6 में कौन सा, लेट्स से 5 आता है और इसमें से 2 आता है, यानी आपका क्या ऑप्शन हो गया? 5,2. सो टोटल में आपके पास 6 ऑप्शन पहला में है और 6 ऑप्शन दूसरे में है. तो टोटल ऑप्शंस कितना है?
2 डाइस थ्रो करने में आपके पास टोटल 36 ऑप्शंस है। 2 डाइस थ्रो करने में टोटल 36 ऑप्शंस होता है। कितना ऑप्शंस होता है? 36। ठीक है। सो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी that on throwing 2 dice, both numbers are same? ये काफी इजी है। यानी 1 1 1 2 1 3 4, सॉरी 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 एंड 6 6। बात को देखिएगा, अगर पहले में 1 2 3 4 5 6 में से कोई भी एक आया तो दूसरा में 1 हो सकता है। ऐसे करके 6 तक रहेगा। ये सारा आपका ऑप्शंस है। कोई भी एक ही ऑप्शन हो सकता है, यूनिक कॉम्बिनेशन हो सकता है। तो देखिए, सेम 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 होगा, और यहां 6 6 सेम होगा। तो कितने बार मेरा सेम नंबर आ रहा है? 6 बार। टोटल कितना ऑप्शंस हो सकता है मेरे पास? 36। सो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ द नंबर्स आर सेम? 1 out of 6। आर वी क्लियर? आर वी क्लियर? ठीक है। What is the probability that on throwing 2 dice, the numbers add up to 7? The numbers add up to 7। यानी जो दो नंबर आ रहा है डाइस में, वो दोनों ऐड करके 7 हो जाएगा। 1 और 6 ऐड करने से 7 आएगा। अगर 5 2 आ गया तो 7 होगा, 4 3 हो गया तो 7 होगा, 3 4 हो गया तो 7 होगा, 2 5 हो गया तो 7 होगा, और 1 6 हो गया तो 7 होगा। तो दे आर 6 ऑप्शंस आउट ऑफ दीज टोटल ऑप्शंस, जिसमें मेरा नंबर ऐड करने से 7 आ रहा है। सो 6 out of 36, यानी 1/6। So this is how we are going to do probability. We are going to look for the favorable options that are coming and satisfying our current question, and then we'll divide that number of options by the total number of options that we have.